Hello viewers, this is the part 2 video of IPO 04, and let's start with unit 9, export credit insurance. Now in this unit, this is one of the very important question, ECGC, that is export credit guarantee corporations. So you might get a short note, and even like you can also get a long question from here. So ECGC, firstly it was established in 1957, and it was the name was different, ERIC, that is Export Risk Insurance Corporation. But later on, the name was changed to ECGC, that is Export Credit Guarantee Corporation. And as the name implies, it provides two important function it does to the exporters. First, it provides credit facilities, and secondly, it provides insurance support to the exporters. So these two important functions you must keep it in mind when you will define ECGC, right? And let's see the different types of guarantee that it offers to the exporters. Firstly, export finance guarantee, it provides finance. Then packing credit, then transfer guarantee, and post shipment credit, post shipment export credit guarantee. So these four types of guarantees are provided by ECGC. And this one is also very important, the different types of policies that are covered by ECGC. These are the four different policies: standard policies, second specific policies, third financial policies, and fourth special schemes. Now in standard policies, basically they are issued to exporters to protect against the payment risk involved in the export trade. And these are the four types of policies it provides for the short term credit finance. That is, shipment policy, which is a comprehensive risk against political and commercial risk. Then shipment risk policy, it covers both political risk of the exported goods. Then contract policy, it covers both commercial and political risk. And contracts policy, that is to cover only the political risk. So more or less it covers this type of risk. First is commercial risk. कोई भी अगर लेन देन में या फिर अगर जहाँ पे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आती है, तो उस रिस्क के अगेंस्ट में इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस. सेकेंडली पॉलिटिकल, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज, तो उसके अगेंस्ट में भी मतलब it provides guarantee. And in specific policies, basically these policies are to protect the Indian firms against the payment risk involved in export of deferred payment. And secondly, service rendered to the foreign parties, and thirdly, construction work, right? So these three types of risk are covered in this. And in specific policy for supply contracts, these are the different shipment policies which are provided in the specific policies. Then it also provides insurance for service policies and any construction work that the Indian company takes in the foreign countries. Against financial risk, it provides this type of policies like packing credit guarantee, export production finance guarantee, then export finance guarantee, post shipment export credit guarantee, export performance, so like that. So it's easy, like financial policies, basically it governs the financial risk, and there are some special schemes against which it also provides insurance. Unit 10 is on import finance. If an Indian firm wants to import goods from foreign country, so like what type of financial help that they can get from the government, so that is what that is written in the Foreign Trade Act. And FIMA, right? So firstly the mode of payment, then currency payment, then time limit for the settlement of the import bills. So these three aspects are covered in the regulatory framework of import finance. And the methods of import finance, how the government provides finance to the importers. They provide through letter of credit, that is LOC, bills under collection. So through this also, the Indian government, Exim Bank, it provides finance to the importers against deferred payment, where
you have to make payments on a future date. So that is also supported by the Exim banks. Then foreign credit. So this one more thing, that is the role of Exim Bank, because this is the most important bank that supports the foreign traders, right? Like, when an Indian traders wants to import or export to or from foreign countries. Unit 11 is on preparing for the shipment. How, like, as an exporter, when you will prepare to shipment your goods, so all these things are there in this. This one, the distinction between liner shipping and tramp shipping. Even I have explained in my previous videos also about this. Liner shipping, it follows fixed route, they have fixed schedule, and they have fixed destination. Like उनकी जो जिस पोर्ट से निकलती हैं जो शिप्स, एक उनका जो डेस्टिनेशन पोर्ट्स होता है वो भी फिक्स होता है, एंड वो उसी पोर्ट के अंदर ही उनकी वॉयज होती है. And in tramp, it is just opposite. They do not follow any fixed routes and schedule. And basically, for general cargo, liner shipping is suitable, but for the bulk cargo, tramp is suitable. Liner shipping is bit expensive, but tramp is bit cheaper. And here the voyage is between only two ports, and here it can cover the multiple ports. And in liner shipping, here the shipping companies of very large size, बड़ी शिप होती है, बड़ी शिपिंग कंपनी होती है. लेकिन यहाँ पे ट्रैम्प शिपिंग में छोटी शिप्स होती हैं, स्मॉलर साइज. ओके, तो लाइक दिस यू कैन डिफरेंशिएट. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैम्प चार्टरिंग, दैट इज फॉर्म्स ऑफ ट्रैम्प चार्टरिंग. ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स में. ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्टरिंग: वॉयज चार्टर, टाइम चार्टर एंड बेयर बोट चार्टर. इसके अंदर वॉयज और टाइम, ये दोनों चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉयज चार्टर, बेसिकली ए शिप इज एंगेज्ड फॉर आइदर ए सिंगल वॉयज और फॉर ए राउंड वॉयज. दैट मीन्स द शिप विल गो टू द इम्पोर्टर्स पॉइंट एंड देन इट विल कम बैक. तो दैट इज राउंड. तो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है. एंड इसके क्लॉजेस को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. क्लॉजेस के अंदर नेम, प्लेस, डेट of the contracting parties, that means importers and exporters, name and description of the vessel, cargo description, कौन सी कार्गो जा रही है उसके अंदर, लोडिंग प्राइस एंड पोर्ट के नाम, उनके फ्रेट, कॉस्ट ऑफ लोडिंग, ड्यूटीज़ टू बी पेड, टैक्सेस, बिल ऑफ लैडिंग, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. तो लाइक दैट ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. एंड टाइम चार्टरिंग में यहाँ पे द शिप ओनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द शिप वाइल द कमर्शियल कंट्रोल लाइज विद द चार्टर, एंड कॉस्ट आर डिवाइडेड बिटवीन द शिप ओनर एंड द चार्टर. एंड बेसिकली दिस टाइम चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हेन द वॉयज इज कंप्लीटेड और द टाइम इज लैप्स्ड, देन द वॉयज इज void. And bareboat is bareboat chartering में क्या होता है? That is, under this arrangement, the ship owner lent out a bare ship for a certain period of time, and the ship owners have the minimum responsibility of maintaining the ship. तो ये भी responsibility होती है एक्सपोर्टर की या इम्पोर्टर की कि वो शिप को मेंटेन करे एंड उसको वॉयज करवाए, राइट. ओके. क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉरेन ट्रेड में. देर आर 3 मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन. अगर आप एक्सपोर्टर हैं देन ये 3 मेथड्स तो आपको याद रखनी है. कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन. इसके अंदर ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो एक्सपोर्टर को डिक्लेयर करना होता है कि ऑल द गुड्स दैट ही इज एक्सपोर्टिंग आर well maintained and of good quality. And consignment wise self certification में थोड़ा सा देख लेते हैं. ये सर्टिफिकेट इशू करता है एक्सपोर्टर, एंड इसके जो मेन जो क्राइटेरियाज हैं जो इंडिया के लिए जो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर स्टार वेयर हाउसेस को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है जहाँ पे दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इशूइंग दिस सर्टिफिकेट एंड दे कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज, राइट. एंड इसकी जो इम्पोर्टेंस है ऑफ दिस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की,
That is, most countries need this certificate for custom clearance, and it is one of the important document to decide about how much duties the importer or exporter has to pay. And for advanced cargo, reporting of this is compulsory. And self certification scheme, it is detached, for the obtaining this thing certificate of inspection from any outer agency. तो लाइक दिस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISO 9000 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी कंपनीज इंडिया में 9000 फिर 9001 ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो वो अचीव करने के बाद में उनको ये सर्टिफिकेट दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ISO, एंड दीज आर इश्यूड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ISO। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दे हैव बीन एक्सेप्टेड एज वर्ल्ड वाइड एंड नॉर्म्स फॉर एश्योरिंग हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and it defines, establishes and maintains an effective quality assurance system for manufacturing and service industries, and it is most widely known and popular to standardize the product, and nearly about 13,000 standards have been published so far by ISO, right? तो ये एक बहुत ही important benchmark है as far as the quality of the goods कंसर्न। तो ये डिफरेंट यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट में लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ISO 9000 जो 2015 में पब्लिश हुआ था, देन ISO 9001 भी 15 में, 9004 18 में, एंड 19011 जो 2019 लेटेस्ट पब्लिश किया गया था। ओके, कुछ बेनिफिट्स हैं ISO 9000 के, बिकॉज यहाँ से आपको अच्छी स्टैंडर्ड्स की गारंटी मिलती है कि goods and services are of good standards and the company is not polluting the environment. It improves the QMS, quality management services. Then the companies that follow these guidelines are likely to reduce the cost of production because their standard of control are, control in place that puts down the cost, and also it saves the time of the company. And the company can have this competitive advantage over their competitors, and like this बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटेनराइजेशन के ऊपर। व्हाट इज कंटेनराइजेशन, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। कंटेनराइजेशन, कंटेनर हम लोग जानते हैं जिसके अंदर गुड्स को प्लेस किया जाता है, स्टोर करके उनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? तो इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं, दे हेल्प इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, एंड दे आर मोर क्विकर एंड मोर एफिशिएंट। दे आर ऑल्सो suitable for long distances by truck, train, ocean, ships, whatever it is. They reduces the risk of loss by through theft or spoilage like that. They protect the goods, basically जो perishable goods होते हैं उनको protect करता है। एंड कंटेनर्स कैन बी ट्रैक्ड इजीली बिकॉज दे हैव ऑल यूनिक नंबर्स, कोड नंबर्स होते हैं, तो उनको ट्रैक करने में भी ईजी होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बिकॉज ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है टू सेंड द गुड्स थ्रू कंटेनर्स, एंड देन जनरली एक्सपेंसेस को लेके ही आपको ज़्यादा डिफाइन करना है बिकॉज दैट विल अगेन इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो लोडिंग अनलोडिंग में क्रेन की फैसिलिटी लेनी पड़ती है, तो लाइक दिस। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है कंटेनराइजेशन का। ओके, आगे चलते हैं यूनिट 12 कार्गो इंश्योरेंस में। यहाँ पे आपको कार्गो इंश्योरेंस पे शॉर्ट नोट मिल सकता है। कार्गो दैट मीन्स द गुड्स विच वी आर एक्सपोर्टिंग, एंड इसके अगेंस्ट में जो भी रिस्क होते हैं, फिजिकल लॉसेस के, डैमेज के, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, कोई भी तरीके की रिस्क है, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस करनी होती है, ठीक है? तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डैमेज, देन इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल लॉसेस, देन लैंड, एयर, वाटर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिस्क होती हैं, दैट ऑल्सो कैन बी अवॉइडेड। एंड कॉल्स इन कार्गो में भी होते हैं कुछ। मेरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज अगेंस्ट डैमेज कॉल्स टू कार्गो इन शिप्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इसके अंदर ओपन पॉलिसी है,
then this is very popular policy, open policy. Then free of particular average और ओपन कवर पॉलिसी एंड स्पेसिफिक वॉयज और शिपमेंट बाय शिपमेंट पॉलिसी। ये थर्ड वाली पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको डिफाइन करना है आपको। एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिल्स कवर्ड अंडर कार्गो इंश्योरेंस। पेरिल्स मीन्स रिस्क। जैसे यहाँ पे मैरीटाइम रिस्क होते हैं, जब जब वेसल जब सी में होता है, ओशियन में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो दैट कैन बी अवॉइडेड। देन एक्सट्रेनियस पेरिल्स, वॉर पेरिल्स, अगर वॉर चल रहा है कंट्रीज़ में, देन वहाँ से भी लॉसेस के चांसेस होते हैं। व्हेन समटाइम्स स्ट्राइक के भी चांसेस हो सकते हैं इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में, तो वहाँ से भी रिस्क कवर हो सकती है। यूनिट 13 इज़ ऑन शिपमेंट ऑफ कार्गो। यहाँ पे हमें शिपमेंट का मतलब भेजना है। यू हैव टू सेंड द गुड्स, हाउ यू विल सेंड। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शिपमेंट। सबसे पहले एक्सपोर्टर को क्या करना होता है, फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड देन इट विल डिपॉजिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद द शिपिंग ऑथोरिटीज़। देन पेमेंट ऑफ पोर्ट चार्जेस, obtaining permission from the shipping companies to bring the goods, then obtaining permission from the shed superintendent to store the goods in the port, then arranging for transport of cargo to the shipyard, and then permission for the gate inspector to move the cargo into the port area, then unloading the cargo, then examining the cargo by the custom authorities, then obtaining let ship order from the custom officer। ये एक्चुअली एग्जामिनेशन के बाद में ही जो पोर्ट ऑफिसर होते हैं वो इशू करते हैं लेट शिप ऑर्डर। एंड ऑब्टेनिंग मेट्स रिसीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेसल के जो मास्टर होते हैं, दे इशू दिस रिसीट दैट लेट द गुड्स बी प्लेस्ड इन द शिप। एंड देन ऑब्टेनिंग फैक्ट ऑफ शिपमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कस्टम ऑफिसर्स। तो ये कुछ स्टेजेस हैं। अगेन प्रोसीड्योर्स में भी मोर और लेस वैसे ही है, लेकिन बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि यहाँ पे एक्सपोर्ट जब करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग प्लेस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, प्रीवियस यूनिट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हुए थे ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, राइट। एंड इसके बाद में आप द एक्सपोर्टर हैज़ टू क्लियर द कस्टम क्लियरेंस बाय एक्सपोर्ट कार्गो बाय एयर। अगर आप एयर से भेजते हैं then you have some different, थोड़ा सा stages different है वहाँ पे, like the processing of shipping document in the air cargo unit custom house is not undertaken manually but through EDI system, that is computer system, ठीक है, when you will send the goods through air, and the exporter has to furnish some details like IEC number, RBI 10-digit code number। तो ये सारे वहाँ पे आपको लॉग इन करने होते हैं, वहाँ पे देने होते हैं। देन द एक्सपोर्टर हैज़ टू बुक द कार्गो विद द एयरलाइन एजेंट एंड obtain this carting order। The next step is to generate the shipping bill from the data entry system of the custom house। Then there are two annexures used here, annexure A and annexure B। annexure A में is used for export duty free goods and annexure B is जहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स होती हैं। तो इस तरीके से दो एनेक्स्चर होते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को चूज़ करना होता है। देन द सिस्टम जनरेट्स द शिपिंग बिल, एंड ये शिपिंग बिल को लेके फिर आप गुड्स को लोड किया जाता है प्लेन्स में, एंड इट इज़ देन एक्सपोर्टेड। ओके, नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिकली 3 मेथड होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही मेथड मेंशन किए हैं, लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन। लिटिगेशन एक्चुअली इट्स बहुत लंबा प्रोसेस है जहाँ पे केस करना होता है कोर्ट में, ठीक है। एंड ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, एंड basically the importer and exporter they try to avoid this litigation process because it hampers the reputation of both the parties, then inconvenience to the parties because उनकी इमेज ख़राब होती है, and adverse public image। तो litigation expensive भी है, very time taking process। अगर कोई dispute होता है तो better है arbitration में यहाँ पे एक middleman, that means arbitrator को appoint किया जाता है। And if there are any disputes
बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, तो वो बीच में सेटल करता है उस चीज़ को। ओके, ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे क्विकनेस एंड लेस एक्सपेंसिव, देन गुडविल, आपकी जो इमेज है वो ख़राब नहीं होती, तो लाइक दैट प्राइवेसी रहती है, द केस इज़ नॉट ओपन टू द पब्लिक। यूनिट 14 इज़ ऑन कस्टम क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्ट कार्गो। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसको कस्टम से आपको कैसे क्लियर करना है। तो मेन यहाँ पे जो इसके जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये कस्टम क्लियरेंस, हालांकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू चेक द स्मगलिंग्स and to regulate international trade according to the national policies, to ensure foreign trade done through FEMA and other important acts, and to collect important data and information about the foreign markets। तो ये कुछ important objectives हैं। stages of clearance, सबसे पहले तो to present the bill of entry, importer bill of entry present करता है to the custom officers, then documents are checked by the custom officer, the bill of entry is marked for assessment, and after assessment the bill is sent to the importer to ask to pay the import duty within 7 days, and after the payment of duties, then the duct superintendent checks the goods which are imported, and after examination, the superintendent issues this certificate out of charge order, and यहाँ से फिर importer अपनी delivery ले सकता है। ओके, आगे चलते हैं। यूनिट 15, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। एवरी कंट्री वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, इंडिया भी, एंड कुछ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एजेंसीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट। इसके अंदर दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, EPC, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देर आर फ्यू कमोडिटी बोर्ड्स लाइक टी बोर्ड्स, jute boards, rubber boards, so they also try to promote import export trade. Exim banks, we know about this. Then ECGC, it provides credit facilities and insurance of various types. Then Indian Council of Arbitration for Disputes Settlement. Then Federation of Indian Exporter Organization. Then Indian Trade Promotion Organization, ये भी बहुत अच्छा काम करती है to promote exports. Then Institution of Packing, Export Inspection Council Agencies, जो चेक करती है, जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स, तो वेदर दे आर अप टू गुड क्वालिटी और नॉट, तो लाइक दिस। एंड वन बाय वन ये सब के आपके जो काउंसिल्स हैं, फर्स्ट पॉइंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो ये मेन इसके फंक्शंस हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस, देन कंटिन्यूस फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, then it is a mouthpiece for the industry, that means it supplies valuable information to the traders, and it covers different types of products like that। commodity boards, ये भी ये कुछ important items हैं जिसके लिए commodity boards have been established: tea, coffee, tobacco, rubber, coir, spices and silk। तो ये boards हैं, and the government always look after this directly through boards। एंड एक्जिम बैंक के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि हाउ दे प्रोवाइड फाइनेंस टू डिफरेंट इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। ECGC के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लाइक दिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। यूनिट 16, एक्सपोर्ट असिस्टेंस इन इंडिया। नाउ अगेन ये भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर ही है, रिलेटेड चैप्टर है। एंड यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अगेन EPZ, दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOU, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट हाउसेस हैं जहाँ पे स्टार्स दिए जाते हैं, स्टार हाउसेस। ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलती है एक्सपोर्टर्स को, अगेन ड्यूटी ड्रॉबैक भी एक तरीके का एग्जेम्पशन है, रिबेट है। बहुत सारी टैक्स रिलीफ्स देती है फॉर एक्सपोर्ट्स। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, एंड EDI सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करें बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। ये सारे 10 पॉइंट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जैसे कि EPZ के मेन फंक्शंस, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, देन EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स,
ईजी है, हार्ड नहीं है, मोर और लेस सभी के ऑब्जेक्ट्स एक ही हैं, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स लाइक दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, राइट। बैंगलोर में है, नोएडा में है, कोलकाता में है, वेरियस एरियाज़ में गवर्नमेंट ने SEZ एरियाज जोन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ओनली गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर एक्सपोर्ट्स। ये शॉर्ट नोट्स में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट हाउसेस लाइक दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 स्टार वेयर हाउसेस तक हैं एक्सपोर्ट हाउसेस। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि एक्सपोर्टर के टर्नओवर क्या है, टर्नओवर के ऊपर उनको स्टार्स दिए जाते हैं। एंड जिसके पास में ज़्यादा स्टार्स हैं वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है विदाउट मच कस्टम फॉर्मेलिटीज़। दैट्स द मेन एडवांटेज। लाइक दैट ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलती है फॉर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट फाइनेंस देता है एक्सिम बैंक्स, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स हैं, टैक्स रिलीफ है, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ओके, कुछ फिजिकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, लाइक फिजिकल इंसेंटिव्स में ड्यूटी ड्रॉबैक, जस्ट नाउ आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस। एंड सेंट्रल एक्साइज रिबेट मिलती है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन है। तो इस तरीके से दीज आर ऑल फिजिकल, जो टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं जो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है। एंड अमंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देर आर टू, दैट इज इंटरेस्ट सब्सिडी एंड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल एंड मीट एक्सपोर्ट्स। तो ओके, यूनिट 17 प्रोसीड्योर्स फॉर क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। ड्यूटी ड्रॉबैक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी स्ट्राइक करता है। एंड बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। दिस स्कीम इज रेगुलेटेड बाय द कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट under the guidance of the Ministry of Finance of India, and according to this scheme, custom duties and excise duties are paid on raw materials, components and all other materials for export are refunded back to the exporters। तो यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी दैट कोई भी ड्यूटीज़, टैक्सेस जो एक्सपोर्टर पेमेंट करता है ऑन दीज आइटम्स, लाइक एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पे ड्यूटी फ्री, मतलब उनके जो भी टैक्सेस पेमेंट करते हैं उनको रिवर्स वो सारे बैक मिल जाते हैं। एंड ये ड्यूटी ड्रॉबैक को क्लेम करने के भी कुछ प्रोसेस हैं। दैट इज़, यहाँ पे एक्सपोर्टर को एक कॉपी देनी होती है फॉर दैट लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लेटर ऑफ क्रेडिट, पैकिंग लिस्ट की एक कॉपी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की एक कॉपी, देन रेट ऑफ ड्रॉबैक, दैन टेस्ट रिपोर्ट दैट इज़ एग्जामिनेशन रिपोर्ट, एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अगर कोई एक्सपोर्टर अगर देता है तो उसकी एक कॉपी। ओके, आगे चलते हैं। एक शॉर्ट नोट ड्यूटी रेमिशन स्कीम के ऊपर है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्यूटी रेमिशन स्कीम। यहाँ पे भी आपको ड्यूटी रिवर्स हो जाती है, रिएम्बर्स्ड टू द एक्सपोर्टर्स। एंड बट ये दो स्कीम्स के अंडर में अगर एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट करता है तो दैट इज़ ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट एंड ड्यूटी एंटाइटल्ड पासबुक स्कीम। तो जो कुछ स्पेशल एक्सपोर्टर्स होते हैं जिन उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे IPO 04 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। एंड नाउ इट इज़ ऑल योर्स, यू शुड हैव a good writing skills so that you can expand your answers and write properly. Thank you very much for watching this video, and kindly like, share this video, and even if you have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe. Thank you.